Good afternoon. Today we will be studying about a basic concept of origin of sociology. I would be explaining you about the origin of sociology in very brief context, but this will be helpful at least for understanding the core concept. Then why did sociology as a subject is needed? So for this we would have to understand about a concept called dark age. Somewhere around 12th century AD. Before 12th century AD, the period is called as Dark Age because each and every individual across the world and especially in the Europe used to think everything, used to explain every phenomena, used to narrate every phenomena only from the point of view of religion. For him or her, church was the prime thing. He did not apply any logic. He did not used to think logically, rationally. For him, the utmost importance was religion. The utmost importance was given to church. So Dark Age is a period when everything was taken into account from the perspective of church, from the perspective of religious morality. हर चीज को चर्च के दिमाग से सोचा जाता था, दिमाग से नहीं घुटनों से सोचा जाता था, एक तरह से कह दिया जाए. With time, new kinds of people came into the front, new kind of literature evolved, नया टाइप का एक लिटरेचर आया, new kinds of painting evolved, and the people like Copernicus, Leonardo da Vinci. सुना नहीं, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे, मोनालिसा की पेंटिंग आपने सुना होगा. लियोनार्डो दा विंसी, कोपरनिकस, रेने डेस्कार्ट. ये बहुत ब्रीफ में मैं बता रहा हूं आपको, क्लासरूम में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी बहुत ब्रीफ में करा रहा हूं इस चीज को. रेने डेस्कार्ट एक्सेट्रा. ये these individuals came into the front and propagated that each and every individual should apply his or her mind, should apply his or her rationality. And they promoted a phenomena called as Renaissance. They promoted a phenomena called as Renaissance. इन्होंने रेनेसा की शुरुआत करी. इनिशियली कैसे? कॉपरनिकस ने क्या कहा? कॉपरनिकस told that Earth revolves around the sun, not what was propagated before, that sun was revolving around the earth. That is a wrong concept. इसके लिए इनको बहुत जुर्म इनको बैठाया गया. He was penalized and at the end of the day he was given the death penalty also. But nevertheless, they can be called as the originator of Renaissance. Renaissance का मतलब होता है thinking based on rationality. Now they promoted a new kind of thinking which was completely based on rationality. समझ में आ रही है बात? Renaissance gave way for two kinds of revolutions. The first is scientific revolution. The first is scientific revolution. मैं बहुत चार्ट फॉर्म में, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको समझाता जा रहा हूं एंड मेक इट अ पॉइंट. इससे एक क्वेश्चन हर साल यूपीएससी मेंस में आना ही आना है ऑप्शनल पेपर में. इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड अनदर वन इज एनलाइटमेंट. Renaissance gave way for scientific revolution and enlightenment. Scientific revolution क्या है? Scientific revolution refers to a process जहां पर every individual looks up to the phenomena of nature. प्रकृति के हर एक चीज को, नेचर की हर एक चीज को आप बहुत ही लॉजिकली और साइंटिफिक तरीकों से देखने लगते हो. आप हर चीज को किससे देख रहे हो? साइंस अप्लाई कर रहे हो. फिजिक्स स्टार्ट होने लगी है, अब लॉज डेवलप हो रहे हैं. सेव पेड़ से गिर रहा है, अब आपके लिए भगवान ने गिराया ये नहीं है. अब आप समझना चाहोगे कि सेव पेड़ से गिरा तो क्यों गिरा, आप दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, आप उस पर रिसर्च करोगे, हर जगह पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे एंड आप फिजिक्स के लॉज बनाने लगोगे. और जब अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से बाद में एक नया तरीके का रेवोल्यूशन निकल के आया विच इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. विच इज कॉल्ड एज
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, मशीन्स डेवलप हुई, स्टीम इंजन डेवलप हुआ, एंड इट लेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूं, बस एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी देने के लिए। नाउ व्हाट इज एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट कैन बी कॉल्ड एज एक्सप्लेनिंग दी सोशल फिनोमिना। जैसे इनिशियली अब फ्रांस में देखिए, देयर वाज अ थ्री स्टेट सिस्टम, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में नोबेलिटी, सेकंड स्टेट में किंग्स वगैरह, एंड थर्ड स्टेट में आम आदमी, नॉर्मल सिटीजन्स। एंड फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट यूज्ड टू रूल ओवर द थर्ड स्टेट, यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द थर्ड स्टेट। Few thinkers came like Rousseau, Montesquieu, John Locke, who taught individual, जिन्होंने citizens को ये बताया कि there is a concept of liberty, there is a concept of equality, there is a concept of fraternity। आपको इनको समझना चाहिए। इंडिविजुअल्स वर मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स, एंड जब इंडिविजुअल्स अपने राइट्स के प्रति सचेत हो गए, जब व्हेन द इंडिविजुअल्स गॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फेमस फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप समझ में आ रहे हैं? इन थिंकर्स की सोच के कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। दिस ईयर इन यूपीएससी 2022 there was a question, how enlightenment paved the way for development of sociology। क्वेश्चन नंबर 2B पेपर 1, कितना अच्छा क्वेश्चन था। how enlightenment, क्योंकि इसमें आपको इन थिंकर्स के बारे में लिखना होगा। how enlightenment paved the way for French revolution, how enlightenment paved the way for origin of sociology। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। With the Industrial Revolution and the French Revolution, Industrial Revolution से क्या हुआ? What happened with Industrial Revolutions? कुछ अच्छी चीजें हुई और कुछ खराब चीजें हुई। कुछ अच्छी चीजें हुई एंड कुछ खराब चीजें, कुछ प्रोज हुए एंड कुछ कॉन्स हुए। प्रोज क्या क्या हुए? अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे। क्या डेवलप होने लगे? अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे। और न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमी, मशीन्स डेवलप होने लगी, न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टेड डेवलपिंग, और लोगों की जेब में पैसा आने लगा। लोगों की जेब में पैसा आने लगा। न्यू लाइफस्टाइल इवॉल्व्ड। सेम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने लगी कुछ जगहों पे। What started establishing? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने लगी। लोग अपने राइट्स के लिए अवेयर होने लगे। पीपल गॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, देयर ड्यूटीज। बट एट द सेम टाइम हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। सो विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, अच्छा ये जो दोनों चीजें डेवलप हुई, इनके साथ में कुछ कॉन्स भी आए। या कॉन्स ना लिखिए, पहले आप लिखिए ये जो अच्छी चीजें हुई, दिस गेव द वे फॉर अ न्यू काइंड ऑफ फिनोमिना कॉल्ड एज मॉडर्निटी। ये जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही है ना, ये क्या इन्होंने कहा? आदमी जब दिमाग से सोचने लगा, न्यू काइंड ऑफ एजुकेशन डेवलप्ड, न्यू काइंड ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टार्टेड डेवलपिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी का जन्म हुआ। एक मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी से हम किस में आ गए? मॉडर्न सोसाइटी से आ गए। मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स क्या होंगे? कि आदमी अपने राइट्स के प्रति अवेयर हो, इंडिविजुअल बिलीव्स इन द डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल lives in the urban centers, individual has right to education, new kind of lifestyle, economy is a way। बहुत जल्दी से और बहुत ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मुझे खत्म करना है, थोड़ा सा ब्रीफ समरी दे रहा हूं आपको, समझ रहे हैं? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये टॉपिक मैं आप लोगों को एक्चुअली। सो मॉडर्निटी इवॉल्व, पर मॉडर्निटी के कुछ क्या थे? साइड इफेक्ट्स भी थे। मॉडर्निटी के साथ कुछ उसके इश्यूज भी साथ साथ चले आए। मॉडर्निटी तो आई, अच्छी चीज है, लेकिन मॉडर्निटी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज भी चले आए। जैसे पहला, पॉवर्टी, गरीबी आ गई लोगों में। पहले सब गांव में रहते थे, एवरीबॉडी वाज इक्वल। अब क्या आ गया है? गरीबी आ गई, पॉवर्टी आ गई। क्लासेस डेवलप हो गई हैं। एक अमीर क्लास जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है मशीन्स का, एक गरीब क्लास, लेबर क्लास डेवलप हो रही है।
बताइए, स्लम डेवलप हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज डेवलप हो रही हैं। क्या डेवलप हो रही हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज डेवलप हो रही हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज डेवलप हो रही हैं अर्बन सेंटर्स में जाने से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइग्रेशन, लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, एक्सेट्रा। एंड इस सिचुएशन में कुछ कुछ अच्छा हो रहा है एंड कुछ कुछ खराब हो रहा है। इस पूरी सिचुएशन में केओस डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? एक बहुत ही अनिश्चित, एक बहुत ही अनसर्टेन सी सिचुएशन डेवलप हो रही है, जहां पे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, और बिल्कुल सब कुछ नए तरीके से हो रहा है, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। एक क्योटिक सिचुएशन इज इवॉल्विंग। और इस क्योटिक सिचुएशन को समझने के लिए कुछ थिंकर्स आए, जो पहले बहुत बड़े फिलोसफर्स हुआ करते थे। उन थिंकर्स ने अपनी फिलॉसफी देना शुरू करी एंड उस फिलॉसफी को एविडेंस से बेस किया, और वही बन गए बाद में सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजी का जन्म, सोशियोलॉजी का ओरिजिन क्यों हुआ? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मॉडर्निटी एंड इट्स इश्यूज। अगर कोई आपसे पूछे व्हाई डिड द सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, so sociology as a subject emerged in order to explain the modernity and the issues associated with it in Europe. समझे? कौन कौन ये थिंकर्स थे? ये थिंकर्स थे आपके डरखाइम, अगस्ट कॉम्टे, सेंट सिमोन एंड इवन मार्क्स बाद में आए, एक्सेट्रा। तो ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो सोशियोलॉजी इमर्ज्ड ओनली विद अ नैरेटिव टू एक्सप्लेन द मॉडर्निटी एंड द इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। और आज ये इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया है। आज सोशियोलॉजी कैन एक्सप्लेन एनीथिंग, बट सोशियोलॉजी की हमें नीड क्यों पड़ी, बात समझ में आई सभी को? यू ऑल अंडरस्टूड? बहुत ब्रीफ में बताया है मैंने, अदरवाइज इसको एक दो लेक्चर्स में खत्म करते हैं टॉपिक, एक एक सेगमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, बट अभी चूंकि मुझे ब्रीफ में बताना था, चलेगा। थैंक यू सो मच।